Now, I would like to tell you something about food chain. इस प्रकार एनर्जी जो है इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिज्म। एक दूसरे को खा के अपना पेट भर रहा और एनर्जी गेन कर रहा। इस प्रकार एनर्जी का ट्रांसफर होता है फूड चेन में। All the things that make up the environments are connected to each other or depend on each other. We can say that they are interdependent. Let us the study of the relations of plants, animals and microorganisms with each other and with the non-living things that surrounds them. You already know that animals depends on plants for food, and herbivores eat plants and carnivores eat herbivores. So this linking together of plants and animals by the process of eating and being eaten is called a food chain. I would like to give you a few examples related to this. First one, grasshopper eat grass, then mice eat grasshopper, then owls eat mice. This is a straight chain of food is formed. Another example, grasshopper eat grass, and then frogs eat grasshopper, and then the snake eat frogs, and after then vulture eats snakes. So energy is gradually transferred from one trophic level to another trophic level. Another example, deer eat grass and tiger eat deer. हिरन ने घास खाया और बाघ ने हिरन को खाया। तो एनर्जी इज ग्रेजुअली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिज्म। फूड चेन्स starts with the sun. In food chain, energy flows between the living things in an ecosystem. Now, related to this, I would like to give you an example. That is, grasshopper eat grass, frog eat grasshopper, after then snake eat frogs, and then owl eat snakes, and after the death of owls, that is the decomposer mushrooms, decompose the body of owl. So, energy is transferred between the trophic level when one organism eats another and gets the energy, rich molecules from its prey body. And this is also the amount of energy per year that's made available to the primary consumer, which is the primary producer. Plants harvest their energy from sun during photosynthesis. The energy can be passed from one organism to another in the food chain. The organism that obtains energy, that is from sunlight, is called producer. The organism that gains energy from sunlight is called producer. Consumer pass 20% of their energy onto the other consumers. A lot of energy in trying to maintain a constant body temperatures. When producer or consumer die, they will be fed on by decomposer. Decomposers break the complex material into simpler components. Now here in these pictures, I would like to tell you something about this. This one, you can see, this is a green plant. The green plant gets its energy from the sun. Green plants gain its energy or get its energy from the sun. सूरज से जो मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो ग्रीन प्लांट्स, जिसको हम प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, बिकॉज द ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. They prepare food in presence of sunlight. So they get the energy from sun, and this one is called primary producer. The plants, this is the part of a plant that is called leaf. Grasshopper is the primary consumer. तो जब ये प्लांट का एक हिस्सा पत्ता यहां पर है, मान लेते कि इसको 20,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, अर्थात ये जो किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर को यहां दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअली ये जो यहां पर दिखा रहे हैं किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर, दिस इज अ बायोमास यूनिट विच रिप्रेजेंट द ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर पर स्क्वायर मीटर. दिस इज किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. मान लेते हैं कि इस जो प्राइमरी प्रोड्यूसर पत्ता है इसको 20,000 किलो कैलोरीज एनर्जी वो है.
अब इसको खाया कौन? ग्रासहोपर। दिस इज द प्राइमरी कंज्यूमर। अब इसको 10%, 20,000 का 10% होता है 2000, तो इसमें 2000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, अर्थात ये 20,000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर था। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर जो कि ग्रीन प्लांट, उसको खाया ग्रासहोपर, तो पूरा एनर्जी उसमें ट्रांसफर नहीं हुआ। 20,000 का 10% दैट इज 2000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये जो है ये ग्रासहोपर में ट्रांसफर हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर। अब ग्रासहोपर को खा रहा मेढक, दैट इज फ्रॉग, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये 2000 जो किलो कैलोरीज है ग्रासहोपर में एनर्जी, इसको खाया फ्रॉग, तो फ्रॉग में ये 2000 का 10% यानी कि 200 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, अर्थात आप फ्रॉग ने इस ग्रासहोपर को खाया, तो ग्रासहोपर में 2000 किलो कैलोरीज था एनर्जी, तो उसको खाने के बाद उसमें कितना, उसमें से एनर्जी आया 200 किलो कैलोरीज एनर्जी वो प्राप्त किया। दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इस मेढक को खा रहा स्नेक, तो 200 किलो कैलोरीज जो इसका एनर्जी था, उस स्नेक जब खाया उसको, तो स्नेक के शरीर में उसका 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होता है, अर्थात 200 किलो कैलोरीज का 10% दैट इज 20 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, अर्थात ये स्नेक जो है अभी 20 किलो कैलोरीज का एनर्जी उसमें आया। वो मेढक को खाया, मेढक में 200 किलो कैलोरीज था, उसको कंज्यूम किया, तो आफ्टर कंज्यूमिंग द फ्रॉग द स्नेक ओनली गेट 10% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, दैट इज 200 का 10% 20 किलो कैलोरीज। अब ये स्नेक को जो है क्वाटरनरी कंज्यूमर है, दैट इज मंगूस, उसने खाया, तो ये 20 किलो कैलोरीज का जो 10% है इस 2 किलो कैलोरीज, तो मंगूस में 2 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, अर्थात ये जो 20 किलो कैलोरी स्नेक में था, वो स्नेक को खाने के बाद मंगूस को पूरा एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुआ। ये 20 कैलोरीज का 20 किलो कैलोरीज का 10% दैट इज 2 किलो कैलोरीज, उतना मंगूस के शरीर में एनर्जी गया। यानी कि हम देख रहे हैं ये मंगूस जब डेथ किया, तो मंगूस को मरने के बाद ये जो डिकम्पोजर है, आपका ये डिकम्पोजर हम दिखाएं, जैसे बैक्टीरिया, ये मशरूम, दिस इज फंगी, ये अर्थवर्म, दिस वन माइट, दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिकम्पोजर। तो जब मंगूस का डेथ होता है, तो ये डिकम्पोजर उसके बॉडी को नोच नोच के खाता है, जो सॉफ्ट पोर्शंस है, और उसमें जो मिनरल्स है वो सॉइल को दे देता है। अब प्लांट क्या किया, उसी सॉइल में से उस मिनरल को लिया, जो डिकम्पोजर सॉइल में मिनरल्स को मिक्स्ड किया, वही मिनरल्स प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब किया, और ये अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो खाना तैयार किया। इस प्रकार फिर से ये लीप, तो here I have shown you a complete cycle of food chain. You can see लीप जिसको 20,000 किलो कैलोरीज एनर्जी था, इसको खाया ग्रासहोपर, तो 20,000 का 10% दैट इज 2,000 किलो कैलोरीज एनर्जी इसमें आया। इसको खाया फ्रॉग, तो 2000 का 10% हो गया 200 किलो कैलोरीज, वो फ्रॉग में ट्रांसफर हुआ। फ्रॉग को खाया स्नेक, तो ये 200 किलो कैलोरीज का 10% यानी कि हो गया 20 किलो कैलोरीज, उतना एनर्जी स्नेक में आया। फिर इसको खाया मंगूस, तो 20 किलो कैलोरीज का 10% हो गया 2 किलो कैलोरीज, वो मंगूस में गया। फिर मंगूस डेथ किया, उसके शरीर जो है डिकम्पोजर ने डिकम्पोज करके जो मिनरल्स था वो सॉइल को दे दिया, और उसी सॉइल से प्लांट मिनरल्स को लेके वो अपना खाना अपने तैयार करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ फूड चेन। Here I have shown you how the energy is decreasing. आप यहां देख रहे हैं the energy is gradually decreasing from one trophic level to another trophic level.
हम देख रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो एक ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी घट के दूसरा में गया, दूसरा से तीसरा में गया, तीसरा से चौथे, यानी कि धीरे धीरे एनर्जी का घटते ही जा रहा। एनर्जी आर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। दिस इज हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन लिविंग organism. Today I have completed it here. Thank you.